Hi guys, CA Rachana Ranade here and I welcome you all to the third lecture on basics of stock market. If you remember when I had crossed 1 lakh subscribers, that was the time when I told you that I would be really happy to post the third lecture on basics of stock market on YouTube if and only if I ever cross 1 million subscribers. But it is all because of your love, support, faith towards the channel that you all helped me to reach this 1 million subscribers landmark within 1.5 years since I posted my first video on basics of stock market. So first video I had posted in February 2019 and July 2020 we are here at 1 million, and here's my promise being delivered to you all. I am posting the third lecture on basics of stock market. So I would like to clarify only two things about the lecture. Okay, number one is that the very first lecture on basics of stock market, which is there on the channel, more than 5 million views is there, no problem about that. There is one more lecture on basics of stock market. Okay, I have titled it as lecture number 2, but it is actually the third lecture in the original course. Okay, so right now what is the position? I'll tell you. Number of lectures on YouTube is only 2, but sequence wise is the first lecture and third lecture on YouTube. Okay, so now what you have to do is, there is one missing lecture in between, which is the third number, but in sequence it is the second number. This is what I'm posting on the channel right now. I hope the clarity is absolutely there. Okay, it's the second lecture in the series, but the third number of lecture that I'm posting on YouTube, absolutely free of cost, just for you all, right? Okay, one more point to be told, which I wanted to give as a clarification, that when I shot this lecture in 2019, at that time the position was something like this: that dividend, taxability of dividend I've covered in this lecture, wherein dividend is tax free up to 10 lakh rupees. Okay, anything above 10 lakh rupees, if dividend crosses 10 lakh rupees, then it becomes taxable. Okay, now what you have to do is understand, there is a change in the law. Okay, you have to understand this. What is the change in law? Now the new income tax act says that if you are earning dividend even 1 rupee, that becomes taxable. Okay, so understand what is the old position: up to 10 lakh dividend exempt, above 10 lakh if your dividend income crosses 10 lakh, then it will become taxable. Old position scrapped out. What is the new position? New position is that even if you earn even 1 rupee of dividend, that will be taxable. Okay, so this is what you have to keep in your mind while watching the lecture. Okay, so these were the two clarifications I wanted to give about this lecture on stock market. I hope you are also aware that I have launched first lecture of mutual funds, but on my website rachanaranade.com. so don't forget to check out the website. You can enroll for the first lecture free of cost, and if you're interested in the free course, we are doing it as a pre-launch offer right now. The full course is going to launch on 15th of August so that you become financially independent also, and so that's one step towards your mutual fund knowledge. So if you're interested, do check out my website as well. गुड मॉर्निंग. ओके, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था. फ्रॉम फ्यू फेसेस आई फील दैट दे हैव नॉट डन द होमवर्क. हाउ मेनी ऑफ यू चेक्ड अबाउट कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड? फैंटास्टिक, वेरी गुड. आंसर क्या है? व्हाट अबाउट डिविडेंड? हाउ टिल व्हाट अमाउंट डिविडेंड रिसीट इज एग्जेम्प्ट? 10 lakh rupees. Very good. So if you can imagine big investors. Now do you remember at least two names of big investors which we discussed yesterday? Those billionaires. Rakesh Jhunjhunwala, वो तो अपने को पहले से ही पता है. And Ramdev Agarwal, Baba Ramdev Agarwal. Okay. Porinju Veliath. So you can imagine that their income obviously might be very, very high. ऐसे केस में they used to earn so much money but without paying even 1 rupee tax. किसके पेट में दर्द हुआ? Government. They said this is not done. We will ask you to pay tax, but up to a certain amount we'll give it as an exempt amount. उसके ऊपर आपको tax भरना पड़ेगा. So for dividend amount is how much? 10 lakhs. So please understand a very basic concept here. 10 lakhs is like a basic exemption limit. Yes or no? Basic exemption limit means what? Let us understand. Ki, let us say I am one of the example. I am one of the billionaire investors. Okay, and my dividend income is 11 lakh. Okay, my question is, will you have to pay tax on entire 11 lakh now, or only the differential 1 lakh?
only the differential 1 lakh. So that is why we are saying that first 10 lakhs is like a basic exemption. Anything and over and above 10 lakhs will be charged at the rate of, very good, that is at the rate of 10%. But what if you fall in a higher tax bracket? अगर आपका खुद का टैक्स हायर टैक्स ब्रैकेट में है, सो आई एम श्योर यू माइट हैव लर्न सम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, लाइक जिनका इनकम 10 lakhs के ऊपर जाता है, they have to pay tax at the rate of 30%. Okay, so assume that my income is above 10 lakhs. Okay, in that case, tell me, on long-term capital gain or on dividend, will I have to pay at the rate of 30% or only at the rate of 10%? Only at the rate of 10%. So that's a special tax rate. Irrespective of my level of income on dividend exceeding 10 lakhs, I have to pay tax at the rate of 10%. Is this okay? What about LTCG? 1 lakh. Basic exemption limit is 1 lakh. Is it basic exemption again? हाँ, जैसे example again, if I gain 1,50,000 rupees, I'll have to pay tax only on 50,000 rupees. Everyone okay till here? Yes. Again, additional 50,000 rupees जो है, इसके ऊपर कितना रेट से टैक्स भरना पड़ेगा? At the rate of 10%, irrespective of my income level. दोनों होमवर्क्स क्लियर है एकदम अच्छे से? सो बिफोर वी मूव ऑन, मेरा भी एक होमवर्क था ना, क्या था मेरा होमवर्क? शेयर सर्टिफिकेट दिखाना था ना आपको. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल शेयर सर्टिफिकेट फोटोग्राफ. वन ऑफ आवर क्लाइंट्स. इज इट विजिबल? सो अच्छा, आई विल जूम इट आउट. इफ यू कैन सी दिस, तो देखो, दिस इज एक्चुअली लाइक अ बुक. कैन यू सी दिस? इट्स एक्चुअली लाइक अ बुक, बाउंड बुक जैसा ही है. पेजेस है, इसमें ढेर सारे पेजेस है. ऑल दीज आर शेयर सर्टिफिकेट लीफलेट्स. आई एम नॉट श्योर इफ द क्लैरिटी इज दैट गुड और नॉट, बट कैन यू सी अ स्मॉल परफोरेशन हियर? देयर इज अ स्मॉल परफोरेशन. इज इट लाइक अ पेन स्लिप? बैंक में पेन स्लिप देखा होगा ना. सो वी फिल सम डिटेल्स हियर, वी फिल सम डिटेल्स हियर. दिस इज टोन ऑफ. ये किसके पास जाता है? बैंक के पास. अगर पेन स्लिप है तो, अगर पेन स्लिप है तो द बिगर पार्ट गोज टू द बैंक, द स्मॉल पार्ट is kept with us. That is about pain slip. What happens with the share certificate? This big part will be given to shareholder. And ये किसके पास रहेगा? Small वाला with the company. Is this okay? So this is actually a share certificate wherein physical, कल अगर आपको याद है मैंने बोला था, one is demat share certificate, one is physical share certificate. Quickly tell me, all private limited companies even today will have share certificate in physical format. Private limited companies. But if I'm talking about listed companies, majority of their shares should be in the demat format. Is this okay? Yes. चलो, so अगर आपने यहाँ पे देखा तो I want a quick answer. यहाँ पे लिखा है equity shares each of ₹10. What is this? 10 rupees? Face value. Remember this concept which we discussed yesterday? So there are many students who feel, ma'am, how will we understand what is the face value? भगवान ने आंखें दी है, दिमाग दिया है. देखो, it is written very clearly on the share certificate. It is ₹10 face value. Can this share be split now? Remember yesterday's concept? Yes. Can this share be split? Could it be split as 5-5? Yes. तो इसको मतलब कैसे whitener लगाएंगे? नहीं ना, whitener नहीं लगाना है ना अपने को. So what will be done? Tell me. What will happen to this book? Will it be useful or useless now? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? One more time. What is the face value of this share certificate? 10. Is it written or is it printed? It's printed. Tomorrow, if the company decides that the new face value post split should be 5 rupees per share, तो इसके ऊपर whitener लगाएंगे क्या? नहीं. तो क्या करेंगे? इसका कुछ यूज है क्या इस बुक का पूरे? Actually not. All these share certificates will be as good as of no use now. So ये इतना अपन डिटेल में जाने नहीं वाले, बट टेक्निकली इसको बाय बैक टाइप में करते क्या बताती हूँ. अज्यूम दैट यू ऑल हैड वन सच शेयर सर्टिफिकेट, एवरीवन हैड वन सच शेयर सर्टिफिकेट, एंड आई एम द कंपनी ओनर. कंपनी ओनर को क्या बोलते थे बाय द वे? प्रमोटर. वेरी गुड. ओके, सो यू कम बैक टू द कंपनी. ओके, यू सबमिट दिस शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. ओके, व्हाट विल आई डू? आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है 10 रुपए का, मैं क्या करूं? कट सबसे पहले, because now it's of no use now.
and I will issue you only one share certificate or 2 share certificates now. 2 share certificates. क्यों? उसके ऊपर फेस वैल्यू क्या लिखा रहेगा? 5 रुपीज. ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है? देखो, ऑल्टरनेटिवली आई कैन इशू यू ओनली 1 शेयर सर्टिफिकेट. यहां पे क्या लिखा रहेगा? इक्विटी शेयर्स ऑफ हाउ मच? 5. एंड यहां पे नीचे क्या है? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. व्हाट विल आई राइट हियर? 1 or 2? I'll write here 2. Why is this to be done? If you remember yesterday, even if the share splits, should my value remain intact or value should go down? Value should remain intact. So 10 रुपए का एक शेयर क्या है? या फिर 5 रुपीज के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2 shares. My value will remain intact. Is this understood? Yes. And फिर यहाँ पे you can see all these big people will sign off, like managing director, authorized signatory if any. Okay, ये आपके पास न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. न्यू फेस वैल्यू विल बी व्हाट? वन लास्ट टाइम विल बी 5 रुपीज. अच्छा, ये छोटा सा पार्ट किसके पास रहने वाला है? विद द कंपनी. कैन यू सी ऑलमोस्ट डिटेल्स तो वही है, जैसे नेम ऑफ द शेयर होल्डर है, एड्रेस है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ पे अपने न्यू फॉर्मेट में कितना आने वाला है? नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स विल बी 2. ओके, एंड दैट्स इट. ऑथोराइज सिग्नेटरी, डेट वेट सब कुछ आ जाएगा. सो नाउ कैन यू विजुअलाइज की कुछ ऐसे शेयर सर्टिफिकेट दिखता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीमैट, ये आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा. डायरेक्टली विल गेट एन अकाउंट स्टेटमेंट. इन द अकाउंट स्टेटमेंट यू विल सी, ओके, दिस X number of shares of this company, Y number of shares of that company. That will be in your statement format. Okay? Yes? चलो, so that is it about what we discussed yesterday. आज अपन fresh discussion से start करने ही वाले हैं. But before that, I always yes, please. Okay, चलो. So yesterday we discussed few concepts. कौन से concepts? Who can tell me what all did we discuss yesterday? एक कोई भी concept अगर याद है, any one concept that you remember we discussed yesterday. So every day I have this habit. First we'll recap what we did yesterday and then we move on. Promoter, and you have to tell me who is a promoter. Owner of the company, who starts the company. Okay, any other concept? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू अभी हमने रिवाइज किया. अभी वाले शेयर सर्टिफिकेट में 10 रुपीज वॉज द ओरिजिनल फेस वैल्यू. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, any value which is written on the face of the document. That is the literal meaning. I'll come again. Any value which is written on the face of the document is the face value. Okay? Yes. So face value का concept क्या? और क्या किया? अच्छा. Tell me it's not appearing. ठीक है. So दिख नहीं रहा ना आपको? ठीक है. चलो, no issues. Directly बोल देते. तीसरा कौन सा हमने किया था? Dividend. Dividend के लिए क्या concept पढ़ा था हमने? It's mandatory to be given every year, or is it the decision of the company? The decision of the company. Did we discuss any company which has loads and loads of profit but does not give dividend? Google, Apple, both concepts we discussed. उसका लॉजिक याद है? कंपनी ने क्या बोला? हम री इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा आपको दे पाएंगे एज ए रिटर्न. उसके बाद भी कंपेयर डिविडेंड विथ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बोला? डज द बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट एवरी ईयर मैंडेटरीली? यस. अच्छा, इंटरेस्ट के लिए कुछ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है क्या कि इतने तक इंटरेस्ट मिला तो टैक्स फ्री? एफडी के ऊपर इतना इंटरेस्ट लेके जाओ, टैक्स फ्री, ऐसे कुछ है? डिविडेंड के लिए था ना? डिविडेंड के लिए कितना है? 10 lakhs. If I earn interest of even 10 rupees, is that interest taxable? Yes, if it is an interest on FD. I'm not talking about interest on saving account. Interest on FD, even if I earn 10 rupees interest, that will be completely taxable. Okay? Dividend के बाद next concept कौन सा किया था? LTCG क्या था full form? Long term capital gain. Okay? Long term कब बोलते हैं? If you have held it for more than 1 year. And if you buy it at 100, sell it at 120, it's a gain. So that is what in totality we call it as long-term capital gain. Okay. इसमें we talked about exemption. Today only we discussed how much is the basic exemption? 1 lakh. Anything over and above that, tax at the rate of 10%. Next point we discussed was stock split or share split. वो भी अभी discuss किया. 10 rupees का 5 rupees. अच्छा, could the company have taken a decision that will split the face value from 10 rupee to directly 1 rupee? Allowed or not allowed? Allowed.
In that case, what will happen to the share value? I want a correct answer. Assume original market price. Original market price was 10,000 rupees. Original market price was 10,000 rupees. At that time, face value was 10 rupees. Now the new face value is 1 rupees. The new market price will be 1,000 rupees. Remember yesterday's ratio? Yes. So it is something like this. 10 रुपए face value के लिए उसका market price was 10,000. For 1 rupee face value, obviously market price will drop down to 1,000 rupees. Is this okay? Yes. उसके बाद कोई और concept discuss किया था? Top line, bottom line. Top line was what? Turnover, and bottom line is nothing but profits. Okay. Yesterday we had taken example of Britannia Limited and how their top line was increasing, but bottom line was increasing in higher proportion or lower proportion as compared to top line? Bottom line was increasing in a higher proportion as compared to the top line. So was it a good sign? Obviously, yes. फिर हमने share के बारे में, share price के बारे में बोला. Started at 800 something and it had moved up till what? 4,000 something. But current market price was only 3,000 something. Bad sign, na? No. What had happened? Because of that share split, the share price had dropped. Acha, could there be any other reason why share price could drop? So there could be some bad news in the company. That there could be a bad news. Like when Patanjali was in full swing, initially when Patanjali kicked in, that time Britannia, ITC, everyone was scared. अब तेरा क्या होगा कालिया? Every company was posting worst results as compared to their original results. So ऐसे टाइम में क्या शेयर प्राइस करेक्ट हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, yes or no? Yes, there could be multiple reasons. Acha, tell me logically the concept which we discussed about stock split yesterday, a very, very similar concept, wherein the market price is also going to drop or increase in the similar proportion, is the concept of a bonus share. Have you heard about this? Bonus share. What is bonus? In simple words, it's free shares. So we are starting with a new concept today. कल के हो गए ना, सभी खत्म हो गए ना concepts? Yes. So we are going to start up with a fresh concept today. You can give the next heading as bonus shares. So in simple words, as I mentioned, what is bonus? Free shares that you get. Okay. So many a times company declares a ratio of giving bonus shares. Let's understand how does this work. For example, company declares we are giving bonus in the ratio of 1:1. ऐसे declare होता है. Company says we are giving bonus in the ratio of 1:1. इसका meaning कौन बता सकता है मुझे? For every 1 share held, you will get 1 bonus share. Okay? You will get 1 bonus share for every 1 share held. Simple है. अब इसी logic से थोड़ा सा आगे जाते हैं. Assume original market price before bonus. Original market price before bonus was rupees 1,000. Logically बताना है. Post bonus after 1:1, इसका market price सेम रहना चाहिए, कम होना चाहिए, डबल होना चाहिए, क्या? सेम होना चाहिए. ओके. कम होना चाहिए. Did you understand my question? Originally, I had assumed in my portfolio, I had 10 shares of this company. Company has declared bonus in the ratio of 1:1. Now new shares, did I get additional 10 shares free of cost? Yes. Now total number of shares in my portfolio are 20. So 10 plus 10 मिल गया मुझे. So my original net worth, assume I have only one share with me, this one company share with me, original net worth was how much for me? 1,000 into 10, ये मेरा value of investment बोल सकती हूँ मैं. My original value of investment was how much? 10,000. What will be my new value of investment? Should it be 20,000 or should it remain at 10,000? Post bonus. 10,000? 20,000? Ideally, the logic works same. Same means what? एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये थी. अब उसी एक शेयर्स के आपको एक और एक शेयर मिल गया. नाउ यू हैव गॉट 2 शेयर्स. अच्छा, इसका तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है.
नहीं, ऐसे रेशियो नहीं किया जाएगा. देन that'll have to be divided by 2 basically. So one share के लिए 1000 was the price. Now with the bonus shares, now you'll have 2 shares in your portfolio. Correct? So now what happens? That 1000 rupees value will drop down to 500. Your value still remains intact. Okay, the logic works same as stock split. But quickly tell me what happens in bonus. Does the face value remain same or face value changes? Face value remains same. Market value will be impacted. Face value will remain same. Then what changed instead of face value? Number of shares changed. Okay. Those who have learned something about finance, those who are pursuing CA, अब ये जो मैंने टर्म यूज किया ना, बिफोर बोनस पोस्ट बोनस, इसी को तो बोलते हैं कम बोनस एक्स बोनस. ऐसे याद है क्या कुछ पढ़ा आपने सीए के टाइम पे? कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, कम राइट्स एक्स राइट्स, सेम चीज. ओके, so what happens with this? Understand, originally I had how many shares? Let us take an example one more time. Originally I had only 1 share. Company has declared in the ratio bonus in the ratio of 1:1. New, how many shares now I have? Totality में 2 shares. My value will remain same. My value will remain same. It has to remain at 1000 only. Okay, in that case what will happen? Tell me. My market price of the share will drop down to 500. Okay, but now tell me what happens next. Mathematically 500 agreed, mathematically. But do you think if the share price goes to 500, more and more people can afford that share, or less people will afford the share now? More people can afford the share. Demand बढ़ेगा, demand बढ़ेगा तो share price और ऊपर जाएगा. So slowly and steadily the share price now again goes on increasing. Okay, and once it goes on increasing, now you are at a benefit. How? Understand? Let us take this example one more time. Original price, फटाफट बोलो, 1000. Original number of shares 1. New number of shares 2. New price 500. You can say it something like this. मैं अभी वो रेशियो नहीं बना पाई थी, but you can just imagine something like this कि इसका वैल्यू 1000 है, ये 1000 ही रहना है, तो what will be this? कैसे हो जाएगा रेशियो? मैं रेशियो बना नहीं पाई थी ना, अभी डबल हो रहा था ना. सो जस्ट करेक्टेड. सो एक शेयर था 1000 प्राइस था, टोटल मेरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1000. 2 शेयर्स के साथ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन विल स्टे एट 1000. हाउ मेनी, आई मीन व्हाट शुड बी द करंट मार्केट प्राइस नाउ? 500 should be the current market price. But now understand what is the benefit to the investor then. 500, is it more and more easy for investors to buy into this share now? Yes. अब इससे क्या होगा बोलो फटाफट? ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस विल राइज. नाउ अज्यूम द प्राइस गोज अप एंड अप फ्रॉम 500 टू डा करके वापस आ गया 800 पे. करेक्ट, 800 पे प्राइस आ गया. नाउ डू आई मल्टीप्लाई दिस विथ ओनली 1 और डू आई मल्टीप्लाई इट विथ 2 नाउ? With 2. So can I say as a shareholder, I will benefit more as and how the price rises, because my multiplier will increase. Is this understood? Yes. So bonus में अभी मैंने क्या बोला? Number of shares will change, yes or no? Yes. Will my face value change? No. Will the market value ideally remain intact? Yes. Again understand, पागल लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? बोनस देने के बाद share price will drop. Every company share price will drop. What do they think? Something is bad. There's some bad news in the company. Even in spite of giving bonus, their share price is halved. And some people even might sell shares. They are the most mad people who are selling the shares. That is the right time where you should buy the shares. You will get it at a lower price. Price movement will be very high. And you will be at an amazing position. मैं आपको इन्फोसिस का एक स्टोरी बताती हूँ. बोनस शेयर का बहुत फेमस स्टोरी है इन्फोसिस का. ओके, बोनस से कितना इंपैक्ट होता है ऑन द नेट वर्थ? अंडरस्टैंड दिस. ओरिजिनल इशू प्राइस ऑफ इन्फोसिस इन 1991 वाज समवेयर अराउंड, आई गेस ओरिजिनल इशू प्राइस इनका कुछ तो 400-500 के रुपीस के आसपास था. अज्यूम करते उस टाइम पे 10 शेयर्स बाय किए थे. इन 1991 वाज 5000 रुपीज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर एनीवन? 5000 बहुत भी बड़ा है या स्टिल मैनेजेबल है? स्टिल मैनेजेबल है 1991 में. 5000 रुपीज. कितने शेयर्स बाय किए होंगे? 10 शेयर्स. यहां तक ओके? नाउ इन्फोसिस हैड गिवन बोनस
8 times in the ratio of 1:1 till date. 8 बार 1:1 का बोनस इशू दिया है. नाउ यू कैन इमेजिन उस टाइम पे जिसने 10 शेयर बाय किए थे कितना हुआ होगा उसका आज. ओके, सबसे पहले फर्स्ट बोनस 1:1. सेकेंड बोनस क्या करूं अभी ऐड. थर्ड बोनस, आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब मैं +80 करूंगी ना. फोर्थ बोनस, नेक्स्ट फिफ्थ बोनस, नेक्स्ट सिक्स्थ बोनस, नेक्स्ट सेवेंथ बोनस, नेक्स्ट एट्थ बोनस. अच्छा क्या हो गया. 640 + 640 था ना अपना लास्ट. 640 + 640 1280 शेयर. जिसका पहले कितना बाय किया था. 10 शेयर्स. ओके, नाउ वेट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट. मार्केट प्राइस. तब की कुछ तो 300 रुपीज 400 वट एवर जितनी भी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. आज कितनी मार्केट प्राइस है. 670 के आसपास है. ओके, सो इवन इफ आई मल्टीप्लाइड विथ 670, 8.5 लाख है ये. दिस इज अ माइंड ब्लोइंग अमाउंट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच. 3,000 4,000 5,000 वट एवर. ये किसका कमाल है. बोनस शेयर्स का कमाल है. यहां तक ओके है. बोनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज. वन मोर कंपनी विच हैज गिवन बोनस ऑलमोस्ट 3 or 4 times इज लार्सन एंड टुब्रो. ओके, सो जिनके पास L&T के शेयर्स है, दे विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग 1:1, 2:1, 3:1, वट एवर. एंजॉय फ्री शेयर्स. विल योर मार्केट प्राइस फॉल डाउन. X bonus, will your market price fall down? Yes. Is there anything to worry? No. It will be more affordable. People will buy in more. The share price will go up. Some students ask me, ma'am, ये share price decide कौन करता है? Who decides कि L&T का price will be 1200? Who decides Infosys का price will be 600 something? मैं decide करती हूँ. SEBI decide करता है. कौन decide करता है? Demand and supply. This is plain economics. Absolutely plain economics. More demand, less supply. क्या हो जाएगा. 11th standard economics this is. So let us take this position one more time. Assume you all want to buy some share. Let's take example of Britannia, yesterday's example. You all want to buy Britannia share. So मान के चलो demand है अभी आप सबसे मिला के. So everyone is not buying only one share ना. She is buying 5 shares, she is wanting 10 shares, she is wanting 20 shares. सबका डिमांड मिला के मान के चलो it is 200 shares. फिलहाल there is only one more investor in the market who is wanting to sell the shares. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है. डिमांड ज्यादा है. So now who is going to be the one who is going to decide कि बेचना किस प्राइस पे. सेलर इज इन अ डिमांडिंग पोजीशन. आप सब लोग बैठे ना, हमको चाहिए. मैं बोल रही हूँ मेरे पास है, उसके पास है, हम दोनों के पास ही शेयर अभी है, एंड वी वांट टू सेल इट. बट वी आर इन अ वी डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड. समझ में आ रहा है ना. सो डेफिनेटली ऐसे केसेस में क्या होगा. प्राइस विल इंक्रीज. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल अदर देन स्टॉक मार्केट ऑल्सो. एवरीवन हैज हर्ड अबाउट अनियंस. देयर इज ऑलवेज अ टिपिकल होर्डिंग इन द मार्केट. एक ऐसे टिपिकल फेज आता है जब अनियंस का भाव पागल जैसे बढ़ जाता है. सुना है ऐसे कभी. एवरी टाइम पॉलिटिशियंस विल डू दिस. दे विल होर्ड द अनियंस इन देयर वेयर हाउसेस. होल्ड करते हैं, स्टॉक करते हैं वेयर हाउसेस में. इससे क्या हो जाएगा. अनियंस का शॉर्टेज होगा. यस और नो. शॉर्टेज होगा. सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा है, प्राइस विल राइज. एट दैट टाइम प्राइस ऑफ अनियंस राइज. आ रही बात समझ में. कोरिलेट हो पा रहा है. बट एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन है मान के चलो. Supply side is more, demand side is less. Price will fall. Is this okay? This is plain economics. All the investors in the market will decide whether prices will rise or prices will fall. Is this okay? So हमने जो बोनस का कॉन्सेप्ट लिखा था उसके आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है. नहीं लिखा है. बोनस शेयर्स डैश. These are free shares. These are free shares issued by the company. These are free shares issued by the company to the investors. To the investors.
Okay, let's write down one example also. Example, bonus declared in the ratio of what? हमारा example 1:1. Bonus declared in the ratio of 1:1. Original market price into bracket. अब technical word बोलना है, because whenever you watch all these business channels, they'll not say before the dividend is declared and after the dividend is declared. Use कौन सा करेंगे terminology? Cum dividend, ex dividend. अच्छा, one minute. Also understand the full form ना? What is cum dividend? Cumulative of dividend. CUM, cumulative of dividend is cum dividend. Ex dividend क्या रहेगा? Excluding dividend now. Okay, so these are very typical short forms used. You must be aware about that. Cum dividend. कितना प्राइस था cum dividend का? 1000. आगे क्या लिखेंगे? Ideal price into bracket x dividend. Ideal price into bracket x dividend कितना रहेगा? Ideal price x dividend will be 500. Is this okay? पक्का? एंड एक और बहुत ऑसम कंसेप्ट देखा हमने, दैट हु डिसाइड्स द शेयर प्राइसेस. बहुत लोगों को एक डाउट रहता है, हु एक्चुअली डिसाइड्स इट. सो जस्ट राइट डाउन अ वन लाइनर फॉर दिस एज अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. हु डिसाइड्स शेयर प्राइसेस? डैश करके क्या लिखेंगे? इट्स एज गुड एज द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट फोर्सेस भी बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है. सो टुडे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर बोनस एंड आफ्टर डिसाइडिंग कि क्या होता है आपका बोनस का कंसेप्ट. वी आर मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स. सो यू विल ऑफन कम अक्रॉस दीज टर्म्स, प्राइमरी मार्केट एंड secondary market. Okay, very, very common terms in share market, primary market and secondary market. I'll compare this with a very simple example in Bollywood. Okay, Bollywood में whenever any hero or heroine comes out with their first film, तो उसमें क्या आता है? आपने कभी अगर मूवी के टाइटल्स देखे तो स्टारिंग आता है या इंट्रोड्यूसिंग आता है? इंट्रोड्यूसिंग है ना, इंट्रोड्यूसिंग. जो कोई भी हीरो का नाम है, जो कोई भी हीरोइन का नाम है. तो ये पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं. वैसे ही पहली बार जब कोई स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में आता है के बजाय क्या बोलो, शेयर मार्केट में आता है पहली बार, तो इसको आप बोलेंगे दे आर कमिंग थ्रू द प्राइमरी मार्केट. पहली बार आ रहे हैं. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. पतंजलि, like yesterday I talked about Britannia. I said, if you are eating biscuits of Britannia, buy shares of Britannia. Now many people might say, no, we are hardcore Patanjali fans. These days there are so many households with hardcore Patanjali fans. You will say, why not buy Patanjali shares? Babaji will be happy. Shall we buy Patanjali shares? Anyone can buy Patanjali shares right now? Can we buy Patanjali shares right now? सोचा ही नहीं, बाबा जी को पूछना पड़ेगा. Can we buy Patanjali shares right now? Any idea? Yes or no? No idea. We can't buy Patanjali shares right now. Why? It is not listed on the stock exchange. मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाती हूँ, आई सर्च पतंजलि, आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग. ओके, सो राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस? इज इट अ कंपनी? यस. अगर आपको कल का अपना एक डिस्कशन याद है, मैंने आपको बोला था सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं, हम सब ने कल एक कंपनी स्टार्ट की थी ना. एंड व्हाट वाज दैट? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. फिर हमने सोचा और बड़ी कर देते हैं, तो हमने उसको बना दिया एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. A very similar case had happened with Infosys also. If you know this, Narayan Murthy and Sudha Murthy, they had started Infosys in one room. तब आपको लगता है वो BSE NSE पे listed रहेगा क्या? Obviously not. It must have been a small private limited company with only 3-4 people in the company. Finish. But जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगती है, do you think more funds will be required? Yes. So assume that there are hundreds of people here. We all are Infosys. We all are
starters, promoters of Infosys. And there are hundreds of people here who believe that Infosys can turn out to be a very big company. हम बोलते हैं हमको पैसों की जरूरत है. Can you give us money? I want correct answer. All these 100 people say yes, we are going to give you money in your company. हम इनको बदले में क्या देंगे? Shares. अब ये भी कौन बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए. और 100 लोग आ गए, वो बोलते हमको भी इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है. और 500 लोग आ गए. Can we still keep it as a private limited company? So there is a company law requirement. जिन्होंने पढ़ा है कंपनी लॉ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने हो सकते हैं? 200. जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रही हूं स्पेसिफिकली क्या होता है. बोलो, हाउ मेनी शेयर होल्डर्स कैन बी देयर मैक्सिमम इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? मैक्सिमम कैन बी 200. ओके, मैंने आपके लिए ड्राइंग बना के लाया सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन द क्लास. सो हमारा कल का ही कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. वी आर नाउ टेकिंग अ पैरेलल एग्जांपल ऑफ व्हाट? इन्फोसिस. मैक्सिमम मेंबर्स, मेंबर्स मतलब क्या? शेयर होल्डर्स. कितने हो सकते? बोलो फटाफट. 200. ओके, अब 500 लोग और आ गए जिनको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. कैन वी डायरेक्टली एक्सेप्ट देम एज शेयर होल्डर्स? कैन वी डायरेक्टली एक्सेप्ट देम एज शेयर होल्डर्स? नो. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कन्वर्ट माई कंपनी फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टू एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड मतलब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई. इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नाउ? No, now there is no restriction. Can I take money from even 1,000 people? 2,000 people, yes. But now the question is, how do I reach to 2,000 people? मुझे 5,000 लोगों से फंडिंग चाहिए, मुझे 10,000 लोगों से फंडिंग चाहिए. किधर मिलेंगे? किधर मिलेंगे इज अ प्रॉब्लम नाउ. Can I put on WhatsApp group, please forward? I need money. No one will give money to my company. Even if I put it as a FB post, no one will give money to my company. So I need to channelize this funding process थ्रू अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. तो किसको अप्रोच करूं मैं? स्टॉक एक्सचेंजेस को. इसके लिए मैं अभी टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जा रही हूं. आई एम टेकिंग ओनली वेरी बेसिक थिंग्स. सो स्टेप वाइज समझ में आ रहा है. सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ज्यादा फंडिंग लगा, वी मूव्ड ऑन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. और पैसा चाहिए, और लोगों को अंदर लाना अपने साथ. कैन आई पोस्ट ऑन व्हाट्सएप? नो. कैन आई पोस्ट ऑन एफबी, इंस्टा? नो. इसीलिए किसको अप्रोच किया? स्टॉक मार्केट को. बोला वी वांट टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. इससे क्या होगा? विल हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस. पैन इंडिया समझते हैं? पैन इंडिया इज थ्रू आउट इंडिया. थ्रू आउट इंडिया विल हैव अ प्रेजेंस. इज दिस ओके? यस. अब ये कंपनी बन जाती है लिस्टेड कंपनी. यहां तक ओके क्या? बट जब ये जिंदगी में पहली बार लिस्ट होगी, जिंदगी में पहली बार लिस्ट होगी, तो ये कौन से मार्केट में अवेलेबल होती है? ये होता है प्राइमरी मार्केट. इज दिस ओके टिल हियर? यस. नाउ क्विकली टेल मी, पतंजलि के शेयर्स क्यों नहीं बाय कर सकते हो? यस, नाउ यू आर टेलिंग मी द आंसर. पतंजलि शेयर्स क्यों नहीं बाय कर सकते? बिकॉज इट इज नॉट येट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. इज दिस ओके? पतंजलि अभी भी क्या है बताती हूं. इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? नो, इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पतंजलि इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. Oh, Patanjali is a public limited company. Can they come up with an IPO if they want? Can they come up with an IPO if they want? Yes. Can they enter the primary market? Yes. तो है क्या प्लान? मुझे सीक्रेट पता है क्या? वो पता है मुझे. सीक्रेट नहीं है वैसे वो. It's there on the website of the stock exchanges. Patanjali is expected to come up with an IPO in 2019. Now if you want to buy the shares, अब बाय कर सकेंगे क्या? Once it is open for investors like you and me, बाय कर सकेंगे नहीं? Yes or no? Yes. Through which market? First through the primary market. Okay. अब ये primary market में क्या होता है? Let us understand. I'll give you a very simple example. This is how a primary market works. ये है आपकी इश्योर कंपनी. ईश्वर कंपनी के लिए लड़की का फोटो नहीं होना चाहिए, वहां पे बाबा जी का फोटो होना चाहिए था अभी अपने एग्जाम्पल में. ओके, सो विच इज आर ईश्वर कंपनी? टेल मी. हमारे एग्जाम्पल में पतंजलि इज द ईश्वर कंपनी. करेक्ट. नेक्स्ट कौन है? इन्वेस्टर्स है, पीपल लाइक यू एंड मी. हम अमाउंट किसको देंगे? हम पैसा किसको भरेंगे? हमको शेयर चाहिए. हम किसको पैसा भरेंगे? टू द ईश्वर कंपनी. सो वी विल पे मनी टू पतंजलि एंड से हमको शेयर चाहिए, हमको शेयर दे दो. पतंजलि विल इश्यू अस व्हाट? शेयर्स. बात समझ में आ रही है? ओके, इट इज नॉट दिस सिंपल. ओके, बाय द वे वी आर गोइंग टू लर्न द एंटायर प्राइमरी मार्केट प्रोसेस इन द अपकमिंग सेशंस. आज आपको सिर्फ एक बेस बता रही हूं
प्राइमरी मार्केट में इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है? चलो फटाफट एक बार फिर से रिकैप करेंगे. टू मेजर पार्टीज, विच आर द टू मेजर पार्टीज? इश्यूअर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. इश्यूअर कंपनी क्या बोलता है? वी वॉन्ट टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. कौन से मार्केट के थ्रू होंगे? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट. व्हाट विल हैपन? टेल मी. इश्यूअर सेज वी वांट शेयर्स. वो बोलते पैसे पहले दे दो. फर्स्ट शेयर्स विल बी अलॉटेड और फर्स्ट मनी विल बी रिसीव्ड. ऑलवेज फर्स्ट मनी विल बी रिसीव्ड. ओके, पहले पैसा दिया जाएगा. जो दोज हु हैव लर्नड इन सीए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सब इधर आता है. ओके, दोज हु हैव नॉट लर्नड, इट्स ओके, पैसा दिया जाएगा, बात खत्म. ओके, मनी विल बी गिवन बाय इन्वेस्टर टू द इश्योर कंपनी. इश्योर कंपनी बदले में क्या देगा? शेयर्स. सिंपल एंड क्लियर क्लियर. ओके, अब वापस जाते हैं अपने मेन स्लाइड में. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में एज आई मेंशन्ड इट इज डायरेक्ट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इश्योर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. अच्छा, अब क्या हो गया? अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में पतंजलि इज नाउ लिस्टेड और नॉट. अगर प्राइमरी मार्केट के थ्रू इन्होंने दे कम अप विथ एन आईपीओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, ये हमेशा प्राइमरी मार्केट के थ्रू रूट होता है. एक बार अपने नोट्स में न्यू टर्म ऐड कर लो. प्राइमरी मार्केट डैश, इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू इश्यू मार्केट. न्यू टर्म है अपनी प्राइमरी मार्केट डैश, इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू इश्यू मार्केट. और उधर ही लिखेंगे अ कंपनी कम्स अप विथ एन आईपीओ. अ कंपनी कम्स अप विथ एन आईपीओ. आईपीओ का फुल फॉर्म लिखेंगे एक बार. क्या है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. कम्स अप विथ एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. थ्रू कौन सा मार्केट? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? थ्रू प्राइमरी मार्केट. यहां तक ओके? So one more time. Right now, today, can I buy shares of Patanjali? Yes or no? No. But if Patanjali comes up with an IPO, now can I buy shares? From whom? From directly Patanjali. यहां तक ओके? शेयर्स बाय किए. बाय करने के बाद प्राइमरी मार्केट में थोड़े दिन के बाद, अभी कितने दिन के बाद होता है ये सब आपको पता चलेगा. रफली 1 वीक अभी दिमाग में पकड़ के चलो. मुझे शेयर्स मिलने के 1 वीक, आजकल तो ये डेज शॉर्ट एंड शॉर्ट होते जा रहे हैं. तो द मोमेंट आई गेट दो शेयर्स, कहां पे मिलते समझ में आया ना? ये वाला अपना जो था, मैंने पैसा दिया पतंजलि को एंड मुझे शेयर्स मिल गए. आफ्टर रिसीविंग दी शेयर्स विद इन 3 वर्किंग डेज, ध्यान से सुनो, एक बार मुझे शेयर मिल गए, शेयर मिलने के विद इन 3 वर्किंग डेज द शेयर्स विल गेट लिस्टेड. कहां पे लिस्ट हो जाता है बोलो? ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. 2 नाम सुने आपने? कौन से 2 नाम सुने आपने स्टॉक एक्सचेंज के? बीएसई एंड एनएसई. बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किधर लोकेटेड है? बोली कुछ भी पूछ रहे हो मैम आप. बॉम्बे स्टॉक नाम में लिखा है ना, तो बॉम्बे ऑब्वियसली. व्हाट अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल है ना, है कि नहीं? नहीं, वो भी बॉम्बे में ही है. ओके, देयर इज अ फैंटास्टिक मिसकंसेप्शन अमंगस्ट ऑलमोस्ट ऑल द न्यू कमर्स दैट नेशनल मतलब दिल्ली में ही होना चाहिए. इट्स नॉट सो. बीएससी एनएससी दोनों भी मुंबई में ही लोकेटेड है फिजिकली. ओके, इफ यू वांट टू बाय शेयर्स डू यू हैव टू फिजिकली गो टू बीएससी? नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली आजकल हो जाता है. ओके, सो कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी कंपनी कमिंग अप विद एन आईपीओ के टाइम पे तो ये लिस्ट हो जाएगा. बट वंस इट गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, अब क्या होता है बोलो? Now, the moment it is on BSE, the moment it is on NSE, now we call it as a secondary market. अब ध्यान से एकदम अच्छे से देखना है. प्राइमरी मार्केट का बहुत डिटेल में बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट टुडे ऑफ प्राइमरी मार्केट. पतंजलि assume comes up with an IPO in June 2019. एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना एकदम. पतंजलि comes up example in June 2019 IPO. अब ये क्या बोलती है? वी विल कीप आवर इश्यू ओपन फ्रॉम 12th of June
to 14th of June. We'll keep our issue open from 12th of June to 14th of June. मतलब क्या होता है? If people like you and me want to invest in Patanjali, what will be the dates between which we have to give that amount? 12, 13, 14, 3 दिन है अपने पास. इन 3 दिनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? इन 3 दिनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to give the amount to the issuer company कि मुझे शेयर्स दे दो. यहां तक ओके? पक्का? 3 दिन खत्म होने के बाद उसके आगे रफली 3-4 दिन और चले जाते हैं इन द एडमिन प्रोसेस. किधर होता है एडमिन प्रोसेस? एट पतंजलि. कि कितने लोगों से पैसा आया, कितना आया, क्या आया, ज्यादा आया, कम आया. दे नीड सम टाइम टू प्रोसेस द डेटा, राइट? उसके 3-4 दिन के बाद क्या होगा बोलो? उनका पूरा डेटा प्रोसेस हो गया. अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप इज शेयर्स विल बी अलॉटेड. फ्लो समझ में आ रहा है? पक्का? वन लास्ट टाइम. पतंजलि का इशू ओपन डेट क्या था? 12th जून टू 14 जून. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, 12 जून टू 14 जून. सो हम इसी पीरियड में किसको पैसे देते हैं? टू पतंजलि. 3-4 days दे टेक एज एडमिन वर्क. उसके बाद क्या करेंगे? वो शेयर्स अलॉट करेंगे. यही प्रोसेस आपका बीएससी के थ्रू हुआ है क्या? एनएससी के थ्रू हुआ है क्या? नहीं. दिस इज द प्राइमरी मार्केट थ्रू विच यू हैव गॉट शेयर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज बीएससी इन्वॉल्व हियर राइट नाउ? No. NSE is involved here or not? No. It's direct relation between whom and whom? Issuer and the investor. This is your primary market. No BSE, no NSE in between. It's directly issuer, directly the investor. This is the primary market. यहां तक बात समझ में आ गई? Yes. Assume. After 3-4 days, मुझे 100 shares allot हो जाते हैं. यहां तक ओके? कितने शेयर्स अलॉट हो गए? 100 शेयर्स. अलॉट होने के 2-3 दिन के बाद, लेट अस से 3 days, अलॉट होने के 3 दिन के बाद दिस शेयर नाउ लिस्ट्स ऑन बीएसई एंड एनएससी. यहां तक ओके? अब मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं. मैंने कहा बहुत हो गया, मेरे को नहीं चाहिए इतने शेयर्स अभी. आई वांट टू सेल इट ऑफ. कैन आई से देखो कंपनी, मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने मुझको शेयर दिए, अब मैं तुमको शेयर दूंगी, तुम मुझको पैसे दे दो. कैन आई सेल इट बैक टू द कंपनी? कैन आई सेल द शेयर्स बैक टू द कंपनी आफ्टर लिस्टिंग? नो, दिस इज नॉट अलाउड. तो क्या करूं मैं? अब देखो क्या होता है. शेयर्स, एक इन्वेस्टर है, दूसरा भी इन्वेस्टर ही है. ओरिजिनल इसमें यहां पे कौन था? कंपनी था. यहां पे कौन था? इन्वेस्टर था. तो प्राइमरी मार्केट में इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन हुम एंड हुम? इश्योर कंपनी एंड द इन्वेस्टर. सेकेंडरी मार्केट में मतलब बीएससी एनएससी पे इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन इन्वेस्टर एंड द अदर इन्वेस्टर. यहां तक ओके? यस. अब क्या होगा बोलो? ये मान के चलो इसको शेयर्स बेचेगी, ये इसको अमाउंट दे देगा, बात खत्म. ओके, बट दिस एंटायर ट्रांजैक्शन हैपेंस इन व्हाट? बहुत क्लियरली लिखा मैंने, हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट. एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब ही कहां पे होता है? ये बीएससी पे, एनएससी पे. इन सिंपल वर्ड्स आपको समझ में आया होगा. बीएससी एंड एनएससी एकदम लेमैन लैंग्वेज में इट्स नथिंग बट अ दुकान. जहां पे आप शेयर बाय कर सकते हो, जहां पे आप शेयर्स बेच सकते हो, वो दुकान इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. 2 अलग अलग दुकान है. आपको जिस दुकान में जाके शेयर बाय करना है करो, आपकी मर्जी है. इज दिस अंडरस्टूड नाउ? यस. सो ये मैं आपको जो ओरिजिनली मैंने आपको वो बॉलीवुड का एग्जांपल जो बताया था, स्टारिंग नहीं, कौन सा? इंट्रोड्यूसिंग इज व्हाट? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट. पहली बार ये स्टार सिनेमाज में आ रहा है, बट एक बार उसका पिक्चर रिलीज हो गया तो इंट्रोड्यूसिंग नहीं बोलते, फिर क्या बोलते? स्टारिंग बोलते. स्टारिंग जब आ जाता है इट्स लाइक अब प्राइमरी मार्केट नहीं है ना, नाउ इट्स लाइक अ सेकेंडरी मार्केट. इज दिस ओके? क्विकली टेल मी एन आंसर. आज अगर आपको इन्फोसिस के शेयर्स बाय करने, करेक्ट आंसर चाहिए. आज अगर आपको शेयर्स बाय करने इन्फोसिस के, कैन यू गो टू द कंपनी एंड से शेयर्स चाहिए? यू कांट बाय इट थ्रू विच मार्केट? यू कांट बाय इट थ्रू प्राइमरी मार्केट. यू विल हैव टू बाय इट थ्रू सेकेंडरी मार्केट. एकदम ओके? पक्का? हमने अभी नोट डाउन क्या किया था? प्राइमरी मार्केट किया था ना, आईपीओ. Have you written that IPO में transaction is directly between whom and whom? Have you written that? Okay. ये एक सिर्फ सेंटेंस एडअप करना.
that in a primary market, transaction is directly between issuer company and investor. Yesterday I had given one more example of DMart, if you remember. याद है DMart का एग्जाम्पल लिया था. टुडे इफ यू वांट टू बाय शेयर्स ऑफ DMart, कैन यू गो टू द कंपनी? कहां से बाय करना पड़ेगा? दुकान से. कौन सा दुकान? सेकेंडरी मार्केट. कौन सी दुकान है अपने दो सेकेंडरी मार्केट के वेरी फेमस? BSE, NSE. ओके, यस. सो विद दैट यू कैन राइट डाउन सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट, नेक्स्ट टर्म. अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स जो हम बोलते हैं ना, बेसिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अब ध्यान से एक मिनट, अपन जो बोलते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अपने बैच का नाम है ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज. तो प्राइमरी मार्केट के बारे में ज्यादा बात चल रही है, सेकेंडरी मार्केट के? सेकेंडरी मार्केट के बारे में ज्यादा बात चल रही है. ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन सेकेंडरी मार्केट, बट प्राइमरी मार्केट के ऊपर एक दिन का सेशन पक्का लूंगी, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर IPO. ओके, सो सेकेंडरी मार्केट के लिए आप लिख सकते हो ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. Also known as stock exchange. Two very famous stock exchanges. Two famous stock exchanges, BSE, NSE. Two famous stock exchanges, BSE, NSE. अच्छा, यहां पे फटाफट, ट्रांजैक्शन इज बिटवीन whom and whom? Between two or more investors. So basically between an investor and the other. Transaction is between an investor and the other investor. Transaction is between an investor and the other. अच्छा, नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ BSE एंड NSE. ये भी लिख लो फटाफट. नेक्स्ट टर्म BSE, NSE. What will you write for BSE full form? Bombay Stock Exchange, NSE National Stock Exchange. And one important point, both are located in Mumbai. Both are located in Mumbai. And एकदम simple layman language में क्या बोला? Is it like a shop? Like a shop? Yes. From where we can buy or sell shares. Okay. यहाँ तक भी okay? Can we move on now? यस, चलो बेसिक नॉलेज तो आ गया. अभी आपको ऐसे लग रहा है यार प्राइमरी मार्केट से तो छूट गया अपना अपॉर्चुनिटी अभी तक. लेट्स गो एंड बाय सम शेयर्स राइट नाउ. अभी आज अपना लेक्चर होने के बाद तुरंत जाके अपन शेयर्स बाय करके आते हैं. अभी मैडम ने तो पता भी बता दिया है, मुंबई में है. भागो यहां से, जाओ मुंबई, बाय सम शेयर्स एंड कम बैक. ऐसे चाहिए क्या? नहीं. डू यू नीड टू फिजिकली गो टू BSE? नो, फिजिकली यू नीड नॉट गो टू ईदर BSE और NSE. सो आप घर बैठे बैठे शेयर्स बाय कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड सम अकाउंट, यू नीड समथिंग. क्या चाहिए आपके पास? डिमैट अकाउंट चाहिए और बैंक अकाउंट. बोले सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए. ओके, सो यू नीड अ डिमैट अकाउंट, यू नीड अ बैंक अकाउंट. व्हाट एल्स? ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी गुड. सो देखो, 3 मेजर अकाउंट्स ये होते हैं. डिमैट अकाउंट एक होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एंड एक होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट. ओके, डीमैट तो नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट. सेविंग बैंक अकाउंट ऑल्सो एवरीवन नोस. ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज है? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. उसका एंड इसका कुछ संबंध नहीं है. व्हाट इज दिस ट्रेडिंग अकाउंट? एनीवन नोस? कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? 4-5 ना. हाँ, एंड ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, यू वांट टू टेल द आंसर फॉर ट्रेडिंग अकाउंट? Account in BSE and NSE through which we can buy. BSE NSE के साथ लिंक मत करना, that is it. हाँ, so it is an account. It is an account through which we can trade. In simple words, what is a trading account? An account through which you can trade. Trade मतलब है क्या? Either buy or sell. पहले समझ लो, then I'll dictate. Okay, trading account is an account through which you can trade, means you can buy or sell. चलो मैंने buy किए shares.
Now I have demat shares. Where will I keep it? In the demat account. Oh, wait. Like when you get money, where do you keep your money? You keep your money in the bank account. Can you keep shares in your bank account? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, बोलेंगे ना बैंक को, थोड़ा एडजस्ट करो, पैसे के साथ 2-4 शेयर रख लो ना. चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. यू कांट कीप शेयर्स इन योर बैंक अकाउंट. यू विल हैव टू स्टोर योर शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट. एकदम थोड़ा सा शायरी के स्टाइल में, रास्ता और मंजिल के स्टाइल में बताती हूँ अभी. ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रास्ता है. डीमैट अकाउंट क्या है? मंजिल है. वाह वाह बोलो, वाह वाह. ओके. Right, so quickly tell me, what is trading account one more time? An account through which you can trade, through which you can buy or sell. It's like a rasta. Whenever you buy, where do you keep it? In the manzil. And what is that? Demat account. Is this okay? Yes. पुराना demat account क्या होता था? दादाजी परदादाजी के टाइम पे कबर्ड. Exactly. अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कबर्ड, which is your demat account. पक्का क्लियर है? सेविंग बैंक अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है. अब आपको एक और चीज बताती हूँ. दीज डेज व्हाट बैंक्स डू, बैंक से विल गिव यू 3-in-1 अकाउंट. यू गो टू एनी बैंक, एंड स्पेशली राइट नाउ वी आर टुवर्ड्स मार्च एंड. अब अगर आपको बहुत मतलब टाइम पास करना है अगर, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू एनी बैंक, बिकॉज ऑल दीज एम्प्लॉइज आर गिवन सम टारगेट्स. ये बेचो वो बेचो, आपके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे. फिर आप ये भी चाय कॉफी सब मंगा सकते हो आप फ्री में, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ेगा उधर. ओके, they'll tell you all about this 3-in-1 फैसिलिटी. 3-in-1 में क्या होगा? 3-in-1 क्या रहेगा आपके हिसाब से? एक ही अकाउंट, मतलब एक ही बैंक बेसिकली ऑफर्स यू ऑल दीज 3 फैसिलिटीज. सो जस्ट एज एन एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक में आप जाते हो. आईसीआईसीआई बैंक बोलता है हम ही आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के देंगे, हम ही आपका डीमैट अकाउंट बनवा के देंगे, हम ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनवा के देंगे. क्विक आंसर आई वांट. इज अ बैंक अलाउड टू एक्ट एज अ ब्रोकर? Is a bank allowed to act as a broker without any permissions? Any bank is not allowed to act as a broker. आपको अलग से permissions लेने पड़ते हैं उसके. Okay, so if you have heard about this, ICICI तो बैंक है, but if you are talking about the broking arm, it is ICICI Securities. HDFC तो बैंक है, but then you will have HDFC Securities which is the broker. but दोनों भी अपने ही है ना, so खोलते वक्त 3-in-1 अकाउंट खोल के देंगे. so they'll be at a big benefit. समझ में आ रही है बात? Yes, but is it mandatory that we open it like this only? Not mandatory at all. So if you want to know about me, I have my bank account with ICICI Bank, but I don't have an account with ICICI Securities. Why? It's very expensive. ICICI Securities is one of the most expensive brokers in town. तो मैंने बोला सस्ता अच्छा लगता है ना अपने को. कल ही अपन ने बात की थी इंडियन मेंटालिटी. सो मैंने क्या बोला, सस्ता ब्रोकर कौन सा है देखो. दिस डेज Zerodha is on a roll obviously, but even so I have my broker is Edelweiss Limited. Okay, so could this be possible that I have bank account with one bank and I have a demat plus trading with a different broker? Allowed or not allowed? Demat plus broker allowed. Okay, बात समझ में आ रही है? Okay, और भी डेंजर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. Like my husband originally when he opened his stock broking account, I mean basically demat account, तो आपने ये नाम सुना अगर होगा, जनता सहकारी बैंक. Okay, he opened his demat account with जनता सहकारी बैंक. फिर उसका कोई एक दोस्त है, बोला मैंने ना ब्रोकिंग का एक लाइसेंस लिया है, शेयर ब्रोकर का मैंने लाइसेंस लिया है, मेरे पास डीमैट अकाउंट खोलना तो. ओके, सो I'll not name the broker, it's a small one, but I'll just use the first 2 alphabets. SS Private Limited, ये एक ब्रोकर है. ओके, इसके पास इसने क्या ओपन किया? ट्रेडिंग अकाउंट. कॉम्बिनेशंस बता रही हूं आपको. दिस इज ऑल्सो अलाउड. इसके पास क्या ओपन किया? ट्रेडिंग अकाउंट. उसका बैंकर कौन है? बैंकर कोई तीसरा भी हो सकता है. बैंकर इज एक्सिस बैंक. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशंस. दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 1. डीमैट एक जगह पे, ट्रेडिंग दूसरी जगह पे, सेविंग बैंक अकाउंट और ही तीसरी जगह पे. चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. कुड यू हैव अ 3-in-1 डीमैट अकाउंट? 3-in-1 अकाउंट बेसिकली जिसमें क्या होगा?
ऑल एट वन प्लेस. कौन से ऑल एट वन प्लेस? डीमैट, ट्रेडिंग, सेविंग बैंक, ऑल एट वन प्लेस. तीसरा वाला मेरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? बैंक एक है आईसीआईसीआई में, एंड डीमैट प्लस ट्रेडिंग इज विद द ब्रोकर Edelweiss. All three combinations are allowed. Many people feel कि जिधर डीमैट है उधर ही ट्रेडिंग करना पड़ता है. Okay, but I'll tell you one biggest drawback of this, after which we changed it. Biggest drawback क्या है देखो, ध्यान से सुनो. मुझे अगर यहां से ट्रेडिंग करना है मतलब मेनली मुझे क्या करना है बोलो फटाफट? बाय सेल करना है. ओके, अज्यूम मुझे कोई शेयर सेल करना है. अच्छा, लाइफ में अगर मेरे पास एक ही कंपनी के शेयर है तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मेरे पास इस कंपनी के 2 शेयर्स है. नाउ नो नीड टू रेफर कि मेरे पास कौन से कंपनी के कितने शेयर्स है. ओके, बट 10 years आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुनने के क्या अच्छा लगता है, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 years आफ्टर दैट, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बाय ओनली 1 share, 2 shares, और यू आर गोइंग टू बाय मल्टीपल शेयर्स एंड ऑफ डिफरेंट कंपनीज. अब एक बार मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे हुआ, ही वॉज गोइंग टू सेल सम शेयर, बट ही वॉज नॉट श्योर कि इस कंपनी के मेरे पास 35 शेयर्स है या 40 शेयर्स है. ही जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड. सो पुराने तरीके से क्या करना पड़ता था, एकदम पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर स्टाइल, मेरे पास 35 शेयर है कि 40 शेयर है, कबर्ड ओपन करो, देखो कितने शेयर है. अच्छा 35 है, आई कैन सेल 35 शेयर्स. सिंपल. अब क्या करना पड़ेगा? अब डीमैट में चेक करना पड़ेगा. बट यू कैन इमेजिन दिस अमेजिंग बैंक डिड नॉट गिव ई सपोर्ट. तो बैंक में जाओ, पूछ के आओ मेरे पास कितने शेयर्स है, तब तक वो प्राइस चला गया. ओके, कैन दैट बी अ बिग डिजास्टर? यस. सो आई नेवर रेकमेंड दिस. सो दैट डे ओनली वी डिसाइडेड लेट्स हैव अ सेपरेट डीमैट अकाउंट, जिसमें आपका ये एटलीस्ट आई सजेस्ट योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी विथ 1 person. सो यू शुड बी इमीडिएटली एबल टू चेक कि मेरे पास कितने शेयर कौन से कंपनी के हैं, एंड यू कैन इमीडिएटली सेल ऑफ इफ यू वांट. इज दिस ओके? यस. One very basic question, can you have 2 or more डीमैट अकाउंट्स? एक ही इंसान क्या 2 या ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है क्या? यस. आपके पास कितने भी कबर्ड्स हो सकते हैं ना. यू कैन ओपन 2 or more डीमैट अकाउंट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इज दिस ऑल्सो फाइन? यस. सो 2-3 कंसेप्ट जो हमने अभी अभी पढ़े, कौन से 2-3 कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट वंस? डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो यू कैन राइट दिस एज अ सोलो कंसेप्ट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. Demat and trading account. What will you write in Demat account? Tell me. It is an account which is used to क्या trade or store shares? Store shares. It is an account which is used to store shares. And second one, it is, so trading के लिए क्या लिखेंगे? It is an account through which क्या? You will trade into bracket buy, through which you will buy / sell shares. राइट? आया समझ में? थोड़ा सा थियोरेटिकल फटाफट खत्म कर लेंगे इसको. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इफ यू वर टू ओपन योर डीमैट अकाउंट? क्या क्या लगता है? देखो, बहुत सिंपल चीज है. जैसे पैन कार्ड, एवरीवन हैज देयर पैन कार्ड. यस. यू नीड एन एड्रेस प्रूफ. फॉर एड्रेस प्रूफ यू कैन हैव आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट. ओके. पर्सनलाइज्ड चेक ड्यूली कैंसल्ड एंड साइंड. यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ पर्सनलाइज्ड चेक? क्या होता है पर्सनलाइज्ड चेक? पर्सनल बैंक अकाउंट का होता है. मतलब क्या? तो दूसरी का बैंक अकाउंट का था थोड़ी ना मेरे पास चेक रहेगा. सेविंग, अब सेविंग का ही चल रहा है. हाँ, खुद का मेरा ही है चेकबुक मेरे पास, विद द नेम ऑन इट. सो जैसे आपका चेक, यू कैन इमेजिन जहां पे आपका चेक होता है, यहां पे यू हैव अ स्पेस टू साइन, एंड अगर उधर मेरा नाम लिखा रहेगा, दैट्स अ पर्सनलाइज्ड चेक. ओके. अगर आपके पास ऐसे पर्सनलाइज्ड चेकबुक नहीं है तो आपका बैंक स्टेटमेंट लगता है फिर.
at least 6 months bank statement these people will ask to open a demat account and a passport size photograph. Normal documents required है, okay? अच्छा चलो डॉक्यूमेंट्स तो समझ में आ गए. एक बार अगर आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, मान के चलो आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट सब कुछ खुल गया. Once you open your account, now you want to buy or sell some share. Primary share, some first share. If you say कोई renowned कंपनी का लेते हैं, जैसे कल मैंने आपको बोला था SBI में आप फिक्स डिपॉजिट तो रखते हो, तब डर नहीं लगता है SBI बंद हो जाएगी, तो why not buy shares of SBI instead of keeping a FD with SBI. So मान के चलो first transaction you do is of SBI shares. और 2-4 कंपनीज जो आपको पता है, tell me some 2-3 companies you know. At least everyone has to tell me one company that you know is listed on the stock exchange. TCS, Tata Consultancy Services, listed on the stock exchange. MRF, कल ही हमने बोला था. Yes Bank, right now it's no bank. इतना वो खराब हो गया है. हाँ. Infosys, Tata Motors, L&T, India Bulls Housing Finance, हाँ. Wipro, Adani Ports, Sports नहीं, Ports, हाँ. Adore Holding, अरे बाप रे, तो एकदम मतलब खजाने से चुन के लाया इसने. एंड वन मोर, ब्रिटानिया. ओके चलो. सो मान के चलो आपने कोई शेयर बाई भी किया. नाउ यू आर नॉट श्योर कि मैंने जो बाई किया वो सही में आया कि नहीं आया, कितने रुपीज में आया, क्या आया. डू यू थिंक ब्रोकर शुड गिव यू सम प्रूफ कि आपने बाई किया है? डू यू थिंक ब्रोकर शुड गिव यू सम प्रूफ कि आपने कोई शेयर्स बाई किया है? 100% यस. इसी प्रूफ को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको एकदम, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है आधे लोग देखते भी नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. वेन एवर यू बाय और सेल एनी शेयर्स, broker has to give you a receipt, na? That receipt is known as what? Contract note. New term. First write down the meaning, then I'll show you a contract note. तो एकदम फिट बैठ जाएगा दिमाग में. Okay. Write down contract note dash. It is like a receipt. It is like a receipt issued by whom? Broker issued by the broker to कौन? Issued by the broker to whom? To the investor, which gives various details. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझ लो. आई शो यू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. बट पहले क्या होता था, देखो आज भी होता है. वाई पहले? देर आर सो मेनी ब्रोकर्स हु वुड बिंदास बाय शेयर्स, सेल शेयर्स फ्रॉम योर अकाउंट. लीगली और इलीगली चल रहा है. इलीगली बोल रही हूं मैं, बिंदास. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इतना बड़ा जो फॉर्म रहता है अकाउंट ओपनिंग का, हर जगह पे तो साइन लेके रखा है. आपने देखे होंगे ना ऐसे फॉर्म जिसमें आप 50 साइंस करते हो. एंडेड में अपनी साइन अपने से मैच नहीं होती है, इतने साइन अप मारते हो उस फॉर्म पे. एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल एक्चुअली रीड वेयर दे आर साइनिंग. ब्रोकर बोलता है इधर साइन करो, आपने उधर साइन किया. और उसमें एक साइन वो ऐसे भी ले सकते हैं दैट यू आर अलाउड टू ट्रांजैक्ट ऑन माई बिहाफ. ब्रोकर ऐसे साइन ले सकता है, यू आर अलाउड टू ट्रांजैक्ट ऑन माई बिहाफ. अब तो ये लीगली ट्रेड कर रहा है आपके अकाउंट से. ओके, मेरे पास ऐसे एक केस आया था. वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम रत्नागिरी एरिया इन महाराष्ट्र. एंड वो आई थी मेरे पास, छोटी सी शक्ल बना के आई थी. मैंने कहा क्या हो गया? शी सेड हर मदर इन लॉ, उनको उनके दादाजी से कोई शेयर्स गिफ्ट मिले थे. सो कैन इमेजिन कितने सस्ते प्राइस में वो शेयर्स गिफ्ट मिले रहेंगे. अब ब्रोकर ने क्या किया? ब्रोकर ने, सो इन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया था. शी सेड शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट. उन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया था, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था. ब्रोकर ने एज यूजुअल बहुत ज्यादा ढेर सारे साइंस लेके रखे थे. What broker did was buy, sell, buy, sell, buy, sell. अच्छा, what happens if broker is doing buy, sell, buy, sell? What is the advantage to the broker? Time pass होता है उसका? नहीं. Commission, that commission is known as brokerage. Technical term is brokerage. Brokerage generate होता है. So can I say broker is becoming rich? Yes.
अब हर बार ऐसे होगा क्या? अज्यूम ही सेल्स सम शेयर्स फ्रॉम द डीमैट अकाउंट एट 100 रुपीज. हर बार विल ही बी एबल टू बाई इट बैक एट अ प्राइस लोअर देन दैट? तो कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है. ऐसे कर करके इन्होंने कितने ज्यादा शेयर्स, उनका खाली ऑलमोस्ट लेस देन हाफ कर दिया था उनका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो पहले बहुत ट्रेड किया. बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना भी पैसा उधर आ जाता है, कैन ब्रोकर टेक दैट मनी और अमाउंट विल गो टू दैट लेडी ओनली? अमाउंट विल गो टू द लेडी, अग्रीड. बट क्या उनका नुकसान भी हो रहा है क्या? कभी शेयर 100 में बाय किया, 90 में सेल कर दिया, कितना रुपीस का नुकसान हो गया? एक बार फिर से 100 में बाय किया, 90 में सेल कर दिया, कितने रुपीस का नुकसान हो गया? 10 रुपीज. इज द ब्रोकर बॉदर्ड? व्हाट डज ही गेट? ब्रोकरेज. ऐसे कर करके उसने उसका पूरा डीमैट अकाउंट लेस देन हाफ कर दिया था. एंड देन शी हैड कम टू मी आस्किंग कि मैडम इसका कुछ हो सकता है क्या? आई सेड दिस इज सो लेट नाउ. एंड ये होके 2-3 साल हो गए थे, उनको तब पता चला था. देन वो बोली मैडम हमको कुछ उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए था ना कि देखो हमने आपके बिहाफ पे इतना ट्रेड किया है. कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट नोट. Friends, it is mandatory that every broker issues, dispatches a contract note within 24 hours of your contract time. जब भी अपने शेयर्स बाय सेल किए विदिन 24 आवर्स. किसने बोला ये करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है? सेबी. यू हैव हर्ड अबाउट दिस? सेबी. इट्स लाइक, एकदम फालतू कंपैरिजन कर रही हूं, जैसे सिविल केसेस में पुलिस होता है, वैसे इधर का पुलिस कौन है? सेबी है. इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रेगुलेटर. सो सेबी बेसिकली इज लाइक एन इंस्पेक्टर. चाहिए सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना? हु इज डूइंग दैट? सेबी. सेबी ने बोला विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. क्वेश्चन इज कहां पे? पोस्टल एड्रेस पे 24 घंटे में आएगा क्या? ऑन ईमेल. सो व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ वेरी वेरी जागरूक इन्वेस्टर? क्या ड्यूटी आपकी? रजिस्टर योर ईमेल आईडी विद द ब्रोकर, रजिस्टर योर ईमेल आईडी विद द स्टॉक एक्सचेंजेस. जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा कहां से? नंबर 1. कोई बोलता है फिर मैडम हम रोज ईमेल चेक ही नहीं करते. नो प्रॉब्लम, यू हैव अ फैसिलिटी टू नाउ रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द ब्रोकर. यू कैन रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द एक्सचेंज. एंड अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो इट इज मैंडेटरी दैट द ब्रोकर सेंड्स यू एन SMS कि आपका इतना इतना आज वैल्यू, कितना शेयर बाय किया, कितना शेयर सेल किया, इसका वैल्यू इतना इतना है आज का. एवरी डे यू विल गेट एन SMS इफ यू ट्रेड एवरी डे. कैन आई से दिस इज वेरी गुड नाउ? अब कोई चीटिंग हो सकता है क्या? इनका ना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था ना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया. सो दोज हु आर ट्रेडिंग, दोज हु आर डीलिंग इन स्टॉक मार्केट्स, प्लीज एंश्योर दैट योर अकाउंट इज प्रॉपरली अपडेटेड विथ योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर बोथ. आपको कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर आनी ही चाहिए. देयर इज नो ऑप्शन विद द ब्रोकर. यहां तक भी ओके? पक्का? कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख लिया आपने? मीनिंग लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट नोट का? यस. यू वांट टू सी अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? देखो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट. आई शो यू इन डिटेल. सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? अच्छा, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर ईडलवाइज. ओके, मैं आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा रही हूँ. ओके, ईडलवाइज इज माय ब्रोकर, तो ब्रोकर का नाम इधर आ गया. ओके, ये एड्रेस एंड नेम ऑफ द पर्सन आ गया. मयूर प्लीज ब्लर दिस आउट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो ये आ गया आपका एड्रेस ऑफ कौन? इन्वेस्टर. राइट. अब आपको यहां पे एकदम सेंटर में क्या आ गया बोलो? कैन यू सी दिस? कॉन्ट्रैक्ट नोट कम इनवॉइस. सो इट्स लाइक एन इनवॉइस. अभी मैंने बोला था ना इट्स लाइक अ रिसीट. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इट्स लाइक एन इनवॉइस. ओके, अब यहां पे और भी ढेर सारी बातें लिखे. लाइक व्हाट? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर. यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन दिस लेक्चर. ओके, सो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है. अगर आप मेरे अकाउंट से ट्रेड करोगे बिंदास, कुछ भी हो जाए, पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं. राइट. दिस इज माई पैन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर. कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर. सो जैसे आप कोई भी दुकान में जाते हैं, आपको इनवॉइस आता है. इनवॉइस नंबर यूनिक रहता है कि नहीं रहता है? इनवॉइस नंबर यूनिक रहता है ना. वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर यूनिक रहेगा. इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कैन आई गो टू द एक्सचेंज एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में गड़बड़ है?
कैन आई गिव अ यूनिक रेफरेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट? यस. ओके. ट्रेड डेट, कब ट्रेड किया मैंने? एकदम ताजा ताजा दिखा रही हूं आपको. 8 फरवरी 2019 फ्राइडे को जो ट्रेड किया है उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है. ओके. नाउ इफ यू सी सेटलमेंट नंबर करके आता है, सेटलमेंट का कंसेप्ट अभी नहीं कर रहे, बट सेटलमेंट डेट आ रहा है 12/2/2019. चला टेल यू दिस कॉन्सेप्ट. बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है ये. ध्यान से देखो क्या लिखा है. ट्रेड डेट इज 8/2 मतलब 8 फरवरी एंड सेटलमेंट डेट क्या लिखा है? 12 फरवरी. मतलब क्या? सो वी कम अक्रॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बहुत लोगों को क्या लगता है, मैंने आज शेयर्स बाय किया. बाय द वे मैंने, अगर आपने देखा तो यहां पे मैंने बाय किए कुछ शेयर्स. ओके. 2 शेयर्स, 2 कंपनीज आई हैव बॉट. ओके. 2 कंपनीज कौन सी है? L&T एंड सेकंड वन इज M&M. M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा. हाँ, तुमको क्या लगा M&M मोसिंगर? हाँ, M&M इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. ओके. ये दोनों भी क्या किया मैंने? बाय. नाउ टेल मी क्विकली, मैंने कितने तारीख को बाय किया है? 8 फरवरी. इमीडिएटली विल आई गेट द शेयर्स? नो, वो जादू नहीं कि मैंने बाय किया आज ही मेरे डिमैट अकाउंट में आ गए. So for that we come across a very amazing concept and that is known as the settlement date. And India में फिलहाल चलता है आपका T+2 settlement. ये आपको टर्म पता होना चाहिए. क्या होता है? T+2 settlement. T means what? ट्रेड डेट. जिस दिन आपने ट्रेड किया वो ट्रेड डेट के आगे कितने दिन लगेंगे? 2 days लगेंगे till shares get credited to your demat account. इज दिस ओके? मैंने कौन सी तारीख को ट्रेड डेट किया था? 8 फरवरी. सो आइडियली टेल मी कितना होना चाहिए? 10 फरवरी होना चाहिए, है ना? बट कितना दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा था रे? 12 फरवरी दिख रहा था. मैडम गलत पढ़ा रही है. T+4 है ये तो. नहीं, रुको रुको. सैटरडे संडे. इट्स T+2 वर्किंग डेज. मोमेंट यू हैव. सो ये कौन सा डेट था? मैंने आपको पहले ही बोला ना, इट वॉज अ फ्राइडे. सो क्या होगा बोलो? फ्राइडे का टी डेट आ गया. फिर ये दोनों दिन छुट्टी आ गया एंड T+1 T+2. आज 12 तारीख है. आज मेरे अकाउंट में L&T के एंड M&M के शेयर्स जमा हो जाएंगे. इज दिस ओके? सो व्हाट इज T+2? टेल मी. T+2 मीन्स ट्रेड डेट +2 वर्किंग डेज. यहां तक ओके? अच्छा, मेरे अकाउंट में तो T+2 के बाद शेयर्स आएंगे. अग्रीड. बट प्लीज टेल मी, करेक्ट आंसर चाहिए. मैंने L&T के शेयर्स बाय किए. किससे? कंपनी से. फ्रॉम सम अदर इन्वेस्टर. उसको पैसा मिलना चाहिए. कब मिलेगा? 8 फरवरी को. फॉर हिम ऑल्सो T+2 सेटलमेंट. सो फॉर हिम व्हाट हैपेंस? अंडरस्टैंड. उसने कब शेयर्स बेचे? 8 तारीख को. उसको पैसे कब मिलेंगे? 12 तारीख को. सो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि आज मुझे पैसों की जरूरत है, आज मैंने शेयर्स बेच दिए, मुझे पैसा मिल गया. पैसा मिलने के टाइम पे भी कौन सा सेटलमेंट वर्क करता है? T+2 सेटलमेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट इट डाउन. T+2 सेटलमेंट. T+2 settlement. It is a system where the transaction is settled. It is a system where the transaction is settled after how many days? Transaction is settled after 2 working days. Transaction is settled after 2 working days. From कौन सी date? From the trade date. यहां तक ओके? पक्का? वेरी गुड. चलो ओके. सो नाउ कमिंग टू द माइनर पार्ट. भी देखो आप विजुअलाइज कर पा रहे. ये हो गया आपका हेडर ऑफ द नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें ये मेरा डिटेल्स, बायर का डिटेल्स या सेलर का, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर का डिटेल्स यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स कौन कौन सा आ गया कि आपका पैन नंबर क्या है. पैन नंबर बोलना गलत है. व्हाट इज योर पैन? बिकॉज एन स्टैंड्स फॉर नंबर ना. इट्स लाइक FC कॉलेज. ओके. सो पैन है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है, then your trade date, settlement date, all these basic details came up here. But now if you want to check कि exactly buy किया, sell किया, कितना किया, कब किया,
देखो कितना डिटेल में ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है. ऑर्डर नंबर आ गया, ऑर्डर टाइम आ गया, ट्रेड टाइम आ गया. सो ऑर्डर टाइम मतलब क्या? द टाइम विच आई प्लेस्ड माई ऑर्डर इन द सिस्टम. अब मैंने आपको पहले बोला है, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्या बीएससी में जाना पड़ेगा? नहीं, मैं डायरेक्टली कहां से बाय या सेल कर सकती हूँ? कैन आई बाय और सेल थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द ब्रोकर्स वेबसाइट? यस. और दीज डेज मेनी ब्रोकर्स ऑल्सो गिव यू मोबाइल एप्स. मैं डायरेक्टली, कितनी बार ऐसे होता है, मतलब ऐसे एक ही बार किया है मैंने, बट एमबीए के कॉलेजेस में वेर आई टीच न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, आई ऑल्सो टीच एमबीए पीपल. तो उस दिन मैं उनको अकाउंटेंसी सिखा रही थी. मैंने अकाउंटेंसी के लिए उनको बोला ये बैलेंस शीट को बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व करो. उनको सॉल्व करने के लिए दिया. मेरे पास टाइम है, तब मैं क्या कर रही हूँ? बाय सेल थ्रू माई मोबाइल ऐप. दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. ओके, सीए में नहीं चल सकता है, ओके, बट एमबीए के लिए चल जाएगा. सो नाउ व्हाट आई डू, टेल मी. मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया. कब प्लेस किया? 2:03:40. ये मेरा ऑर्डर टाइम है. चेक व्हाट इज द ट्रेड टाइम. सेम. कैन यू इमेजिन द स्पीड एट विच माई ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड? खतरनाक स्पीड है. मैंने ऑर्डर डाला, सेम सेकंड एग्जीक्यूट हो गया. दिस इज अमेजिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी? ऐसे भी नहीं हुआ कि मैंने अभी डाला एंड अगले सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया. दिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट इट सेज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि हम 1 माइक्रो सेकंड में 6 ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं. इतना हमारा स्पीड है. 1 माइक्रो सेकंड में मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ अ सेकंड. 100th ऑफ अ सेकंड में वो कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लेंगे? 6 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लेंगे. सो 1 सेकंड में 600 ऑर्डर्स दे कैन एग्जीक्यूट. दैट इज देयर टेक्नोलॉजी स्पीड. अमेजिंग. सेम हैपेंड विद द सेकंड वन, M&M, ऑर्डर टाइम एंड ट्रेड टाइम. अगर आप देखेंगे सेकंड्स के साथ भी सेम है ना, सेकंड में भी चेंज नहीं है. चलो, अपने को एज एन इन्वेस्टर क्या इंपॉर्टेंट है? देखो आपने क्या किया है. आपने L&T के शेयर्स बाय किए. ओके, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया. क्वांटिटी के बाद आता है, सो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, आपने किया क्या है? आपने बाय किया है. बाय क्या किया है? कौन से शेयर्स बाय किए? L&T के शेयर्स बाय किए. M&M मतलब कौन सा था? महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स बाय किए. कितने क्वांटिटी बाय किए? वट एवर. हाँ, बाद में वो ब्लर होने वाला है ना. हाँ, वट एवर क्वांटिटी बाय की है. ओके, रेट आप रख सकते हो मेरे, एट वॉट रेट वी हैव बॉट? 1273.55. अच्छा, ये L&T का एक शेयर कितने में बाय किया है? 1200 समथिंग. एंड M&M का एक शेयर कितने में बाय किया है? 700 समथिंग. यहां तक ओके. अब आ गया ये वाला पॉइंट, ब्रोकरेज रेट पर यूनिट. क्या? 0.01. 0.01. अच्छा, ये क्या है बताती हूँ. ये आपको एक अच्छा आइडिया नहीं दे पाएगा, बिकॉज आई हैव समथिंग नोन एज एन एडवांस ब्रोकरेज प्लान. आपको नहीं पता होगा शायद. एडवांस ब्रोकरेज प्लान मतलब क्या होता है? मैं एक लमसम अमाउंट मेरे ब्रोकर के पास जमा कर देती हूँ. लेट्स से 10,000 रुपीज. एंड ऐसे 10,000 रुपीज तुम तुम्हारे पास जमा करो एंड तुम्हारे ब्रोकरेज से ये काटते रहना साइमल्टेनियसली. बट डज ही गिव मी अ वेरी चीप रेट इन दैट केस? यस. ओके, अदरवाइज यहां पे क्या आता है बताती हूँ. जनरली द ब्रोकर गिव्स यू अ रेट ऑफ लेटर से 30 पैसा. टिपिकली कैसे बोलते हैं? 30 पैसा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 30 पैसा ब्रोकरेज? मीन्स व्हाट विल हैपन? टेल मी. If you buy shares worth rupees 100, your brokerage amount will be 30 पैसा. Is this okay? So यहाँ पे आ गया आपका ब्रोकरेज का अमाउंट. फिर आ गया आपका टोटल ब्रोकरेज. टोटल ब्रोकरेज मतलब व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रोकरेज रेट पर यूनिट. ये आ गया आपका ब्रोकरेज टोटल. नाउ हु कैन टेल मी ये नेट रेट पर यूनिट मतलब क्या गया? दिस इज योर बेसिक मैथमेटिक्स. मान के चलो मैंने एक शेयर बाय किया 100 रुपीज में, माई ब्रोकरेज इज 30 पैसा. व्हाट इज माई नेट रेट? 100.30. इट्स लाइक अ ग्रॉस रेट बेसिकली, कि माई बेसिक बाइंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज. ये हो जाएगा आपका 100.30. ओके. फिर इसमें लगता है STT. जिन्होंने सीए किया है, STT. व्हाट इज STT? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ओके, ये आपको ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं. इट्स अ मैंडेटरी चार्ज. दिस इज, आई मीन, कोई ऐसे मतलब अपने को ऐसे नहीं कर रहे हैं, कोई फेक चीज नहीं है. STT इज मैंडेटरी, देना ही पड़ता है आपको. ओके, सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया. एंड उसके बाद आपका फेवरेट क्या? GST लगेगा या नहीं लगेगा?
जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस. So here you can see CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%. CGST, central GST, SGST, state GST. 9% पे. 9% of what? Of the brokerage. 9% of the brokerage, not of your total amount. क्यों? ब्रोकरेज के ऊपर क्यों लग रहा है बोलो? सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जीएसटी का अमाउंट काफी कम रहेगा, 18 पैसा इतना ही ब्रोकरेज लगा है मेरा, सॉरी जीएसटी इतना ही कम लगा है मेरा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ब्रोकरेज इज लाइक योर सर्विस. ब्रोकरेज इज लाइक योर सर्विस. सर्विस के ऊपर आपको लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो जीएसटी विल बी लेविड ऑन व्हाट? द सर्विसेज का पोर्शन, दैट इज योर ब्रोकरेज का पोर्शन. सी आपको कोई एक रिसीट अगर मिल रहा है तो आपको रिसीट के अंदर क्या क्या लिखा है पता होना चाहिए ना, एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या क्या होता है. ओके, सो आपको यहाँ पे ये सब 2-3 चीजें आ जाएंगी, जैसे सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया. 2-3 मोर पॉइंट्स यू हैव टू पे कि आपका सेबी के टर्नओवर फीस करके रहते हैं. ऑल दीज आर सम एडिशनल टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच आर लेविड टू यू, बट ये बहुत कम रहते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट स्मॉल पॉइंट्स. बट कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो सबसे मेजर 2-3 चीजें जो हमने सीखी, मेजर पॉइंट्स, क्विकली टेल मी व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? इट्स लाइक अ रिसीट issued by whom to whom? By the broker to the investor. If I am a buyer, will I get it? If I am buyer of shares, will I get it? Yes. If I am a seller of shares? Yes, obviously yes. जैसे मैंने अभी बाय किया था तो मुझे यहाँ पे क्या आया बोलो? नेट अमाउंट पेएबल बाय द क्लाइंट. मैंने मेरे ब्रोकर को कितना पैसा देना है. एंड यही अगर मैंने शेयर सेल किए होते थे तो यहाँ पे क्या आता था? नेट अमाउंट. शेयर सेल किए तो यहाँ पे हु इज इशुइंग इट टू हुम? ब्रोकर इज इशुइंग टू मी ना. सो नेट अमाउंट ड्यू टू द क्लाइंट. ड्यू बोलेंगे ना, ड्यू है फ्रॉम हुम टू हुम? फ्रॉम द ब्रोकर टू द क्लाइंट. बात समझ में आ रही है? पक्का, वेरी गुड. चलो, सो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने बोल दिया. T+2 सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पड़ा अभी. व्हाट इज T+2? ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 वर्किंग डेज. आज मैंने शेयर्स बेचे, कब मिलेंगे? 2 दिन के बाद. आज मैंने शेयर्स बेचे, 2 दिन के बाद क्या मिलेगा? मनी विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 days. आज मैंने शेयर्स बाय किए, 2 दिन के बाद शेयर्स मिल जाएंगे. इज दिस ओके? पक्का? यस. सो आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़े? जस्ट क्विकली लेट अस रैप अप वन बाय वन एंड देन विल स्टॉप फॉर द डे. फटाफट बोलो आज के कौन कौन से कंसेप्ट्स थे. सबसे पहले हमने बोला बोनस शेयर्स. ओके, बोनस शेयर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था? लेट अस से 1:1. मतलब क्या होगा आपका? फ्री शेयर्स, एक के ऊपर एक फ्री, इज अ 1:1 बोनस शेयर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने क्या बोला? क्या मार्केट प्राइस सेम रहेगा? क्या मार्केट प्राइस विल नॉट रिमेन सेम. इफ बोनस इज इनटू द रेशियो ऑफ 1:1, मार्केट प्राइस विल हाफ. ओके, सेकेंड पॉइंट फिर हमने बोला था. सेकेंड पॉइंट कौन सा बोला था हमने? सिक्योरिटीज मार्केट बोला था. सिक्योरिटीज मार्केट में 2 मार्केट्स आते हैं. कौन से 2 मार्केट आते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फ्रॉम वेयर यू कैन बाय और अप्लाई फॉर एन IPO. व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर. यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हुम एंड हुम? इश्यूअर, कंपनी एंड द इन्वेस्टर. बट सेकेंडरी मार्केट में इट्स वेरी फेमस. सेकेंडरी मार्केट्स आर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हुम एंड हुम? वन इन्वेस्टर एंड द अदर इन्वेस्टर. इन सिंपल वर्ड्स, BSE NSE क्या है? दुकान है. 2 अलग अलग शॉप्स है जिसमें आपको क्या मिलता है? शेयर्स मिलते हैं बाय सेल करने के लिए. ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट विच वी डिड टुडे, नेसेसरी अकाउंट्स. 3-in-1 वाला फंडा हमने बोला. एक बोला हमने डीमैट अकाउंट, एक बोला हमने ट्रेडिंग अकाउंट, एक बोला हमने सेविंग अकाउंट. हु कैन टेल मी फटाफट डीमैट अकाउंट क्या है? वेयर वी कैन स्टोर द शेयर्स लाइक द कबर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? वेयर यू कैन ट्रेड, बाय और सेल. एंड व्हाई डू यू नीड सेविंग अकाउंट? पैसा चाहिए ना, ट्रेडिंग. ओके, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट विच वी डिड वाज डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? वी डिस्कस्ड अबाउट दैट, पैन कार्ड एंड दिस दैट. नेक्स्ट वन, contract note, the most important one which we did towards the end, that was like a receipt or an invoice which is issued. Okay, so आज के सभी terms समझ में आ गए. What I personally feel is that whenever time permits, एक बार revise करते जाओ ये terms, because you are learning 5, 6 new terms every day. You might forget that, and that is why I am following this कि lecture खत्म होते के टाइम पे एक बार revision, अगले दिन आते ही वापस से revision and cumulative revision लेंगे थोड़ा फटाफट, random revision कि day 1 से लेके क्या पढ़ रहे हैं. So एकदम on the last day आपको ऐसे लगना चाहिए वाव
समवेयर अराउंड 40 to 50 concepts I've learned in the past 10 days. एंड ये सभी मेरे को कंसेप्ट अच्छे से आ रहे हैं. अभी तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओके है? एनी सजेशन? कोई स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है? ओके एकदम. आज आपको होमवर्क नहीं दिया यार मैंने. अच्छा, यू हैव टू टेल मी कि एग्जाम्पल देना है कौन से कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है. इन्फोसिस ने बहुत रिसेंटली एक बोनस इशू किया है. सितंबर में इन्फोसिस ने बोनस इशू किया है. ओके, अब आपको ये ढूंढना कहां पे है और कंपनी ने बोनस दिया कि नहीं है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. मेरे को किसने बताया? किसी ने कान में आके बताया क्या? इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है. वेयर विल आई फाइंड दिस? हाँ, ये BSE NSE की वेबसाइट पे मिलता है. सो टुमारो आई विल शो यू. वेबसाइट ओपन करेंगे कल. ओके, एंड और एक बहुत सिंपल वेबसाइट है, आज आप ये चेक कर सकते हो, moneycontrol.com. You might have heard about this website, www.moneycontrol.com. ओके, चलो आज ये होमवर्क करना है अपने. एक तो सबसे पहले एक आध कंपनी जिसने बोनस रिसेंटली दिया है, या फिर आप कोई भी एक कंपनी बताओ जिसने बोनस दिया है, नंबर 1. नंबर 2, अपनी ये वेबसाइट चेक करनी है, www.moneycontrol.com. या फिर आपने BSE इंडिया NSE इंडिया किया तो भी चलेगा, बट प्रेफरेबली ये करो. इसमें एड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये नेगेटिव पार्ट है, बट इसमें डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको. ओके, सो आई ऑल्सो शो यू हाउ दिस वेबसाइट, इट्स अ फ्री वेबसाइट, यू नीड नॉट रजिस्टर. सो ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक एनालिसिस, ये भी बताऊंगी कल. ओके, सो विल सी यू टुमारो. बाय बाय.